बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का फेस कोई होगा यहाँ के नहीं आप जैसा? नहीं नहीं, हमारा तो देखो, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों में, हम अपना फॉर्मूला क्यों आपको भी बताएं? Because sometimes they become HRD minister, sometimes they become education minister. I don't know the difference between education and HRD. Perhaps I'm not wrong. It was Mr. Rajiv Gandhi who devised this HRD minister. Am I right, Mani? Because he put all human resources together under one ministry. Pradhan ji, kyunki I don't want to get into details. What do you think in a federal government or in a democracy like India, where state subject is also education and is on the concurrent list, what is the role of an education minister? To unite or divide? No, any responsible person will not talk about divide. I didn't mean divide in terms of religious. No, any aspect, be it religion, be it language, be it region, be it geography. No sensible person can advocacy about any division. So there is certain things are unanimous in our country. We have to create a united force, united spirit, and I think there is a moment today in our country. We may have our differences in political issues. We may have differences in our certain particular issues. But in moreover, the country is united for well-being of the human being. No, when you say unite in the sense, because normally people say language unites, but in India we can't have one language. Obviously, the language formula which was devised by V.S. Jago has not been implemented. Because on the name of education, a lot of fight takes place. Basically, it started with Mr. Nurul Hasan, and I must tell you, out of 33 education ministers so far, only 4 have completed term. Not many, because education ministers in this country are changed every second year. I am surprised because in Modi government, where stability is ensured, you have a continuity of 5 years long duration for finance, defense, commerce, other things. But even in Modi government also, you are the 4th education minister. So it looks like when it comes to education department, there is no kind of a stability even at the central level, even at the state level. The state is, education don't you think is an important subject? I mean, language can't unite India. Education policy should be such which can unite. Because on NEP also, now you must have heard many states have opposed it. So what is the role, how to education minister can unite everybody on one table? Prabhuji is an intelligent person in our country. I'll not say he's a journalist only, he's a thinker, he's a diplomat, he's good in words. So he has put 2 questions in one umbrella. One is language, one is continuity as education minister, stability and education department. I'll handle that in the supplementary question later on. But let me try to answer the part 1 of the question. Language is a divider or a unifier? I certainly believe Devi Prasanna ji is here. He represents language of the country. It may be Odia language for his advocacy, but he represents the language, vertical language. He is a language authority of the country. National education policy is saying all languages are national language. There is a continuity, there is a similarity, there is interconnectivity in all the languages of our country. The moment we will say, this is the only language you will be taught, then the division and tension is there. Realizing going through our experience of last few decades, the education policy 2020 very categorically saying the early education will be in the mother tongue, in the local language. Now we will be happy to know. Now we have given advice to CBSE, the central board, to create mechanism to facilitate students, those who will want to study in their mother language, mother tongue, from class 1 to at least class 8.
In this preparatory years, if they will try, they will want to learn, study, and read in their mother tongue, CBSE is going to facilitate that. The CBSE will give that opportunity to them. लास्ट टाइम बहुत कम है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। एक ये भी है, आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन जितनी भी है एकेडमिक, उनका सेफरेनाइजेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बता रहे हैं, लिबरल लोगों को निकालते चले जा रहे हैं। उसमें कितना सच है? सच नहीं है। तो जितने भी अपॉइंट किए लोग आपने मेरिट पे अपॉइंट किए हैं? पूरा मेरिट पे किए। उनका बैकग्राउंड आरएसएस या बीजेपी का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आरएसएस बीजेपी होना कोई संविधान में गुनाह है क्या? हमने मेरिट को ध्यान दिया। ये बैठे हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद महांती, ये हमारे वाइस चांसलर रहे उड़ीसा की एक यूनिवर्सिटी में। ये तो आरएसएस की हाफ पैंट तो नहीं पहने होंगे कभी। मैं जितना जानता हूं उनके बारे में, तो अरविंद के अनुयायी है, तो अरविंद स्कूल में पढ़े हुए व्यक्ति थे, उनको हमने नियुक्त किया। आपके कहना ऐसे आपकी मैं तो 25 एग्जाम्पल बता सकता हूं। मैं तो मेरे सामने संजोग से महांती साहब यहां बैठे तो मैं इनको उदाहरण दिया। मैं तो बहुत दिनों के बाद उनको मिला। ऐसे नहीं है। देखो अच्छे लोग आते हैं सब, हम मेरिट पे लाते हैं, हम मेरिट पे लोगों को विश्वास करते हैं। बाकी देखो, ये सारा विषय पे जहां तक आप मेरे को ले जाना चाहते हो, मैं वहां जाने वाला हूं। और मणिशंकर जी के सामने मैं कैसे जाऊंगा? वो भी नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तो आपसे पूछ, आप ये मैं आपसे फिर यहाँ आनंद रंगनाथन है, मैं तो बैलेंस में चल रहा हूँ कि अजय कुछ आज तो कुछ लोग मैं पूछ लेता हूँ कि मैं थोड़ा उम्र में भी बड़ा हूँ, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। बड़े भाई हो आप मेरे, बड़े थोड़ी लिबर्टी, क्योंकि उनके आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस या बीजेपी के होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है अच्छी पोस्ट के लिए, अगर मेरिट पे आते हैं। मैं आरएसएस का हूँ। नहीं, आप तो पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं। क्या असुविधा है पॉलिटिकल पोस्ट? एकेडमिक पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी महांती साहब है। हाँ, तो आपका कहना है कि आरएसएस बीजेपी भाई इसमें सारे इसमें परहेज क्यों है? मणिशंकर जी की एक विचारधारा, मेरे को आज डेमोक्रेसी में हैव टू रिस्पेक्ट दैट। उसमें गलत क्या है? इसमें कहने में कि आप बीजेपी, जैसे प्रमोद महाजन सिंह जी, मैंने सवाल पूछा था क्योंकि आप उनसे मैंने सवाल पूछा कि आप टेलीकॉम में सबको आरएसएस बीबीपी के लोगों को रख रहे हैं, कि उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेसियों को रखूंगा क्या? तो मैं आपसे पूछा हूं कि आप उस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में देखो, मेरे ऊंचाई नहीं है मैं स्वर्गीय सर प्रमोद महाजन जी की तरीके से उत्तर दूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है, देखो विचारधारा सबकी अलग अलग होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको आज के एकेडमिक्स में 25 लोगों को गिना सकता हूं शायद, जो आप स्केल लेके घूम रहे हो कि आरएसएस बीजेपी, शायद उस स्केल में वो फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन दे आर गुड पीपुल, उनको रहना ही चाहिए। देश के हित में जो है वो सही व्यक्ति है। वो कांग्रेस का हो, वो उनको नेहरू जी को मानते हैं तो स्वागत है, हमें क्या आपत्ति है? ये डेमोक्रेसी है। हमें देश की विकास के लिए जिन लोगों की सहमति है उनको हमें महत्व देना चाहिए। एक दोबारा बताऊं, वो तो एक सिद्धांत बाबू बैठे हैं, ये हमारे चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर देश की रहे, अभी रिटायर्ड करके आ गए ना सिद्धांत बाबू भुवनेश्वर। ये तो कभी बीजेपी के मेंबर नहीं रहे होंगे, ना इनकी धर्मपत्नी बैठी, वो तो कभी बीजेपी में नहीं थी। देखो, हम मेरिटोक्रेसी में हमारी सरकार चलती है। हम ये जो कुछ मित्रों को जिनको डेमोक्रेसी में डिफीट होता है ना, उनको कुछ बहाना ढूंढता है हमको गाली देने के लिए। ये क्यों इसको ले आया, उसको क्यों ले आया, उसको क्यों ले आया, ऐसा नहीं है। प्रतिभा और गुण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देश के साथ जो सहमत है, देश के विकास के लिए जो कमिटेड है, उनको हम महत्व देते हैं। वो प्रक्रिया में सब लोग आगे आते हैं। ये एक वो शायद ये पुराने नैरेटिव हो गया है प्रभु जी, और कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा हमको थोड़ा टाइट करने के लिए। ये तो नैरेटिव जो होता है एजुकेशन मिनिस्ट्री चलेगा। आपको एक भी सवाल मैंने कल परसों पढ़ रहा था कि आईआईएम को पहले ऑटोनॉमी थी अपना चेयरमैन प्रेसिडेंट चुनने का, उसमें कुछ आप लोगों ने कुछ लगाया, इसमें क्या है कि अब सरकार से पूछना पड़ेगा दोबारा से? ना ऐसा नहीं है। देखिए, 2018 तक आईआईएम एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनको अधिकार नहीं था वो एक डिग्री दे पाएंगे। वो सर्टिफिकेट कोर्स चलाते थे, डिप्लोमा के कोर्स चलाते थे, डिग्री नहीं दे पाते थे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने आईआईएम एक्ट 2018 लेके आए। उस समय में जो एक्ट हम लेके आए और आज थोड़ा उसमें हमने अमेंडमेंट किया है, 3-4 साल का अनुभव आया कि इनकी डायरेक्टर और उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को चयन करने की प्रक्रिया हम देश में एक स्टैंडर्ड्स करनी चाहिए, जैसे आईआईटी का है,
जैसे एनआईटी का है, आईआईटी भी उतने ही बड़े अच्छे ब्रांड है। जैसे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी जिस प्रक्रिया से अपने डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ चेयरमैन को चयन करते हैं, ऐसे ही प्रक्रिया में हम आईआईएम को भी लेके आए कि यूनिफॉर्मिटी लाए। इसीलिए कोई सरकार देखो, अभी 5G टेक्नोलॉजी देश में इंडिजिनस बन गई। किसने बनाया? 5 आईआईटी और सीडॉट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की मेटी के एक इंस्टीट्यूशन सीडॉट, उन्होंने बनाया। ये तो सब क्वालिटी के लोग थे। इसलिए हम एक स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने थोड़ा आईआईएम एक्ट को थोड़ा अमेंड किया है, लेकिन इनकी एकेडमिक ऑटोनॉमी, एकेडमिक फ्रीडम जैसे था उसे ज्यादा रहेगा। चलिए, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। 2024 का चुनाव आ रहा है, आप चुनाव लेके अकेला लड़ेंगे ना बीजेपी, या कोई छोटी मोटी कोई पार्टी यहाँ भी ढूंढेंगे आप? देखो, हमारा एनडीए है, हमारा एनडीए को भी इस बीच में 25 साल पूरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 2024 की चुनाव लड़ेगा। 350, मैं आज कह के जाता हूं, 350 से ज्यादा सीट एनडीए को आएगा। मैं असेंबली की बात करती हूँ। असेंबली का चुनाव भी साथ में होने वाला है, उसमें आप, वहां तो एनडीए, यहाँ तो बीजेपी है, या दो ही पार्टी। उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में कल तक इंतजार करिए। क्या बोला? कल पूछ लीजिए पहले। मैं उसमें बीजेपी, अरे मैं पिछले हमारे ये तो मैं आप में इस बार फंसूंगा नहीं। आप तो आप कल तक, कल कंक्लूडिंग सेशन तक पूछ ही लीजिए। गलत जगह पे पूछ रहे हो। दिल्ली भाई बैठे हैं साक्षी हमारे, गलत जगह पे पूछ रहे हो। कल इलेक्शन में कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का, कल पूछ लीजिएगा। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा। कौन सा वाला? कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का फेस कोई होगा यहाँ के नहीं, आप जैसा? नहीं, हमारा तो देखो, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों में, हम अपना फॉर्मूला क्यों आपको भी बताएं? हमने महाराष्ट्र में जीता बिना चीफ मिनिस्टर के नाम पे, हमने हरियाणा में जीता, यहां भी जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे।